Good morning, dear students. I hope you would be fine inside your homes. Today, the COVID 19 pandemic, or we can say the endemic, is really putting the heavy amount of pressure at every nook and corner. So, it is better to remain home confinement in such circumstances in order to save our lives and save others from this very pandemic. Today is 26th of July 2020 and it's class 10th subject political science. Topic popular struggles and the moments, which is the fifth very unit that we are going to start today. I'm from Boys Higher Secondary School, Pansgam. You are in charge assistant teacher Mr. Nisar Ahmed Khaja. And in the today's topic, we are going to focus on some important terms which will help us to understand the whole topic in our upcoming days. Let's try to understand one by one these very important terms. And the first very term is meiosis. Meiosis का मतलब क्या होता है? Who are meiosis? Communists who believes in the ideology of Mao Zedong. Those communists who believes in the ideology of Mao Zedong. Mao Zedong, a dictator of China, we can say, or he was a monarch in the sense. A monarchy, a system where a king or a queen rules, and he was a monarch, he was a dictator who was ruling over China, and even he killed billions of the people and during his reign. And those people who believe in his ideology and believes in overthrowing government through our struggle, and ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है उसको ख़त्म करना है तो उसको आसान तरीके से ख़त्म किया जा सकता है एक मिलिट्री रूल के ज़रिए से, मिलिट्री आर्मर्ड स्ट्रगल के ज़रिए से. The next term, democracy. Democracy has actually been derived from two Greek words, demos and kratos, which means the power of the people. So the democracy means the power of the people, where power is in the hands of people. Well, people can choose the representatives, and the representatives goes into the parliament, where they can make the laws for the entire country, where they can solve the issues, the problems of the people. People cannot go there, but through these representatives, they can get their rights, they can get their jobs, they can get their other different things that they need in their life. Next one is third wave countries. What are third wave countries? Those countries which had won their democracy in the later part of the century. Third wave countries, which is also sometimes known as Tisri Leher. These are those countries actually who won their independence after the post-independence, after 1974, we can say. Example, Nepal. Nepal in third wave countries की एक example है, यानी these are those countries which had won democracy from either monarchy or dictatorship from the colonial rule, we can say. Example हम कह सकते हैं Nepal is there, Bangladesh is there, etc. SEPA, SPA. What is meant by the SEPA? What is this abbreviated term SEPA? It is a 7-party alliances, and it is an agreement of 7 parties from Nepal, which was formed in Nepal to overthrow the monarchy of King Gyanendra. King Gyanendra, who was basically a dictator, who was trying to become a dictator in the Nepal, and then some political parties joins hands together, forms a SEPA, 7-party alliances. We can see the 7 different political parties join their hands, make an alliance, and fight against this monarch, King Gyanendra. When this monarch, King Gyanendra, was overthrown, so then this was known as SEPA, 7-party alliance. Alliance, we can say the agreement in which both the sides are willing to do work for one another. Then there is next term, that is MNC. You are well aware about it. MNC, it is a multinational company. MNC means multinational company. MNCs multinational companies. यहाँ पर MNC है तो multinational company
whose business is separate through many countries, like जिनका बिजनेस जो है ये बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ, लाइक इनके जो बहुत सारे नाम से जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो कंपनीज है, लाइक नाइक इज देयर, रेबॉक इज देयर, टाटा इज देयर, एटसेट्रा. देन नेक्स्ट वेरी टर्म इज बोल्विया. व्हाट इज बोल्विया? बोल्विया क्या है? तो बोल्विया, इट इज अ कंट्री इन लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका. वी कैन से इट इज वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज इन द साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका. बोल्विया अ कंट्री है इन लैटिन अमेरिका और वी कैन से साउथ अमेरिका, एंड इट इज वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका, अगर जनूबी अमेरिका की बात की जाए तो ये गरीब तर ममालिकों में से एक ममालिक है जो बहुत ही गरीब है, जहां पर लोग जो है वो बहुत ही मतलब गरीबी की जिंदगी जो है वो गुजारते हैं. लेट्स टर्न द पेज. देन वी हैव वन मोर important term, that is pressure groups. Pressure groups itself inside the name pressure, दबाव. Pressure groups, what are pressure groups? Any organized or unorganized group. ये कोई organized group भी हो सकता है जिसको हमने बनाया होगा, और unorganized group जो voluntary जो group of people होंगे which tries to influence government policies, जो हमेशा कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट पर दबाव डाल दिया जाए, एंड ट्राई टू प्रमोट इट्स इंटरेस्ट, और फिर जो उनका जो मसला है उस तरह से उस मसले को जो है सॉल्व किया जाए. यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पे दबाव डाल के गवर्नमेंट का इंटरेस्ट डाइवर्ट करके कंसंट्रेशन अपनी ओर करके अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कराना, इनको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स. Next, sectional interest groups. Any group of persons which is formed to promote any specific goal or which tries to promote interest of any particular group. Sectional interest groups वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमने एक गोल हासिल करना है, लेकिन ये सिर्फ गोल जो है, ये जो वर्क है या जो कोई काम है, ये सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए हम नहीं करना है. एक पर्टिकुलर ग्रुप जो सोसाइटी में है इनके लिए कुछ काम करना है, इस पे सरकार को दबाव डालना है. जैसे हमें ट्रांसफॉर्म चाहे तो कोई एक पर्टिकुलर मोहल्ला जो है वो जाता है तो वो सरकार या एमएलए पे दबाव डालते हैं या सरपंच पे दबाव डालते हैं, तो फिर सरपंच से होते हुए ये एमएलए तक पहुंच जाता है, तो फिर एमएलए मजबूर हो जाता है कि उनको ये ट्रांसफॉर्म दे दिया जाए. तो ये सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप है हियर, बिकॉज द इंटरेस्ट ऑफ दिस वेरी ग्रुप इज फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक. तो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप जब किसी पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए आपका जो एक टारगेट है, आपका जो गोल है, या आप किसी के लिए सोचते हैं, नॉट फॉर द एंटायर सोसाइटी बट फॉर सेक्शनल ग्रुप और एन इंटरेस्ट ग्रुप. देन पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, a group of people which promotes the interest of the people of society in general. और ये जो ग्रुप होता है जिनके दिमाग में ये होता है कि हमने अगर डेवलपमेंट करनी है, कोई काम करना है, तो ये सोसाइटी के लिए होना चाहिए इन जनरल, नॉट अ पर्टिकुलर, नॉट इस पर्टिकुलर सेक्शन बट फॉर अ जनरल सोसाइटी. जब जनरल सोसाइटी के लिए हम सोचेंगे, जैसे हमने कोई डेवलपमेंट करनी है, ये तो पूरे गांव के लिए होनी चाहिए, नॉट फॉर ए स्पेसिफिक मोहल्ला या किसी गली. तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, जिसमें पब्लिक का जो है फायदा होगा. Then there is one more term, that is FADICOR. FADICOR को हम पहले elaborate करने की कोशिश करेंगे, फिर इसको समझाने की कोशिश करेंगे. It means Farrakhan Departmental Cochabamba de Regents. It was basically a federation of farmers, एक organization थी farmers की, who protested, जिन्होंने protest किया था against water privatization in Bolivia. जब water जो था, जो पानी का जो मसला था, जब वो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जब उन्होंने पावर जो वाटर का कॉन्ट्रैक्ट जो था बोल्विया कंट्री का, तो स्पेशली कोचाबामा जो सिटी है वहाँ की जो वाटर जो था वो एमएनसीज को दिया गया था, प्राइवेटाइजेशंस वहाँ पर हुई थी, तो वहाँ पर कोचाबामा को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. तो फिर इस एमएनसीज के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ, एक मूवमेंट चलाई गई जिसमें बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट्स भी थे, जिसमें इंजीनियर्स भी थे, जिसमें एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग भी थे. जैसे इनका जो इंटेंशन था, जो इनका खास मकसद था, वो यही था कि जो वाटर प्राइवेटाइजेशन हुई है इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए. वाटर का जो हक है, जो इनको फिर 100 से लेकर जो हजार से लेकर 5000 बिल आ गई थी ये लोगों को, ऊपर से उनका जो इनकम था वो बहुत ही कम था, तो उसको ख़त्म किया जाए. इसलिए उन्होंने ये FADICOR मूवमेंट जो थी ये ऑर्गेनाइजेशन की, फिर चलाया, और फिर वहाँ पर जो है एमएनसीज
के जो कंट्रैक्टर्स थे उनको मजबूर होकर ये जो मसला था उनको छोड़ना पड़ा और वहाँ से भागना पड़ा। तो फिर ये वाटर का जो मसला था, वाटर प्राइवेटाइजेशन, वाटर वार जिसको हम कहते हैं, तो फिर इन लोगों को फिर वही जो एक वी कैन से सैंपल अमाउंट का जो बिल था वो देना पड़ गया। तो पहले इनको बहुत ज़्यादा बिल देना पड़ा था, वो वन वी कैन से वो इसमें 3 गुना ज़्यादा हो गया था, उन्होंने बढ़ाई थी प्राइवेट कंपनी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज ने। तो लास्टली जो हमारा ये है मोमेंट, मोमेंट एक अगर ये एम मोमेंट होता है तो वो लम्हा होता है। ये जो मोमेंट होती है ये तहरीक होती है। मोमेंट वी कैन से मोमेंट यहाँ पर इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस। मोमेंट का जो मसला होता है, ये मोमेंट एक तहरीक होती है, इसको चलाने वाले लोग होते हैं और ये जो लोग चलाते हैं इस तहरीक को, इनके पीछे एक मकसद होता है कि हमने किसी गोल को जो है वो हासिल करना है, और ये जो गोल है ये इट शुड बी फॉर द जनरल पीपल, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर सेक्शन और फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप, जिसको हम तहरीक बोलते हैं। और थैंक्स, हैव ए नाइस डे।